जय श्री राम फ्रेंड्स, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत चैनल पर एक बार फिर। आज मैं बात करूंगा नीट फिजिक्स सीरीज में वर्क एनर्जी पावर में PYQs की। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज एज यू कैन सी हियर अ फोर्स F इज इक्वल टू 20 + 10 by x on a particle in y direction where F is in Newton and y is in meter. The work done by the force to move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1 meter. अब देखिए how to solve this problem. Now in order to perform the solution you have to calculate the overall work done, right? तो यहाँ पर condition given is F is equal to 20 + 10. तो let us see how to solve this. Work done by force F is W is equal to F into dy, okay, in the integral limits y1 to y2, and since the F is given as 20 + 10 by, जैसे कि देखिए आपने देखा यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है. Now using this expression and limits आपको दे रखी है y is equal to 0 to 1 meter. तो putting the values and solving this integral would get me the value of 25 joule. तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 25 joules. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Friend, next question is when a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of wire becomes L plus L. The elastic potential energy is stored in the extended wire is. Now how to solve this question? Simply you have to draw a diagram for solving this potential energy. Means u, तो u की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? Let us see. This is the diagram. Means this is initial length capital N and the elongation means the change in length would be L plus small n. Okay. Now this is the mass. So finally potential energy u, which is also the work done, is equal to half into force into elongation. Right. So finally you are getting half F into L, or F is equal to mg, as you can see here. So final expression becomes half m into g into L. So this is your answer. So let us see. This second option is correct. Okay. Next question is, now see friends, next problem is initially spring in its natural length. Now a block of mass 0.25 kg is released. Then find out the value of maximum force by system on the floor. तो एज पर दिस पर्टिकुलर डायग्राम यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल द पोटेंशियल एनर्जी. और इसका आप एक ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए. 2 kg का जो ब्लॉक है उसके लिए ब्लॉक डायग्राम बनाइए. तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सी दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, और FBD रादर यू कैन से फॉर 2 kg. ओके, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दीज आर 2 forces and this third force which is a normal reaction acting on this particular block. So finally the potential energy of the spring is nothing but the potential energy of block. So means half kx square is equal to half j, which is nothing but the law of energy conservation. Okay, so finally the force applied by the spring on the block, that is F is equal to kx, which is 0.5 into g, because k value is given as 0.5 g, as you can see this in this particular case. So this, how this results in this maximum force on the system on the floor is N is equal to F plus 2g from this free body diagram. So finally F is equal to 0.5 g plus 2g, that is 2.5 g. So if g is equal to 10 meter per second square, then N means the normal reaction comes out to 25 Newton. So finally the answer is 25 Newton. This is the correct option, right? Next question is, if a machine perform 4000 joule output work and 1000 joule is inside lost due to friction, then find the efficiency. Okay, तो जैसा हमने डिस्कस किया था, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे. एफिशिएंसी एक्सप्रेशन इज आउटपुट एफिशिएंसी अपॉन इनपुट एफिशिएंसी, सॉरी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100. सो गिवन आउटपुट W आउटपुट कितना दिया इस क्वेश्चन में, देखिए 4000 जूल दिया हुआ है, तो वहाँ पे यहाँ रख दिया, और 1000 आपका लॉस हो रहा है. तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल इनपुट जो वर्क वो होगा, एनर्जी होगी, वो होगी आपकी 4000 + 1000, दैट इज 5000. तो पुटिंग द वैल्यूज वुड गेट मी द एफिशिएंसी ऑफ 80%. तो आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 80%. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. ये ऑप्शन इज करेक्ट. Second is kinetic energy of a particle is increased by 4 times. What will be the relation between initial and final momentum? Okay. Now to solve this problem again, you just consider the relation between kinetic energy and momentum. जो मैंने आपको बताया था लास्ट डिस्कशन में, हमने डिस्कस किया था जो मोमेंटम है which is related to kinetic energy by using the equation P is equal to √2m into k. Okay. Now since the kinetic energy as per the given problem, see this 4 times particle increased by 4 times. तो इसमें क्या होगा कि K2 would be 4 times K1. तो using this expression you can easily say that P2 is equal to √2m K2 means 2 √2m and this is 4 K1. अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो P2 और P1 के वैल्यू जो आ जाएगा, P2 की वैल्यू हो जाएगी 2 √2m K1, और यू कैन से P2 is equal to 2 P1. मतलब मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम हो दैट वुड बी 2 times द इनिशियल मोमेंटम. ओके, सो दिस इज P2 is equal to 2 P1. ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट? So friends, next proceed to another problem, which is 1000 Newton force is required to lift a hook and 10,000 Newton force is required to lift a load slowly. Find power required to lift hook with load with the speed of v is equal to 0.5 meter per second. Now how to solve this? इसमें आपको इक्वेशन लिखनी पड़ी. पावर इन टर्म्स ऑफ वर्क डन मीन्स P is equal to W/T का यूज करके आप इस इक्वेशन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. देखिए कैसे करते हैं. इसमें क्या होगा, नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ हुक एंड the load, that is nothing but F net is equal to 1000 plus 10,000, that is 11,000 Newton. Now power is nothing but W/T means W is equal to F into T. Okay, now P is F into D upon T, right? तो इसमें आप फाइनली कह सकते हैं P is equal to F into V means power is equal to net force into velocity. तो 11,000 into 0.5, क्योंकि इस केस में वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकंड. तो आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई किए एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू इज 55 मिनट विच इज नथिंग बट 5.5 किलोवाट. तो दिस आंसर इज 5.5 किलोवाट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज spring of force constant K is cut into lengths of ratio 1 to 3. They are connected in series and the new force constant is K dash. If they are connected in parallel and force constant is K double dash, then K dash to K double dash is means अगर सीरीज और पैरेलल दोनों के कनेक्शंस को आप अगर कंबाइन करें तो K के रेशियो में क्या फर्क आएगा. तो उसको करने के लिए हमारा तरीका क्या रहेगा
एक बार इसको हम रिजल्टेंट जो फोर्स कांस्टेंट होता है उसको देख लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, अगर आप सीरीज में करते हैं तो 1/k बार डैश इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, राइट। नाउ यूजिंग द रेशो concept, you are just putting the values in terms of x, say 1/x plus 1/2x plus 1/3x means k dash finally comes out to be 6x/11। और पैरेलल में जब हो जाएगा तो उस केस में नेट के आप निकाल लीजिए, सीरीज में ऐड हो जाएंगे सारे, k प्लस x प्लस 2x प्लस 3 दैट इज 6x। अब इनका दोनों का रेशो लेंगे तो आपका रेशो क्या आएगा, 1:11 आ जाएगा। तो ये 1:11 इज द करेक्ट आंसर, मीन्स आंसर सी इज करेक्ट। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स F इज इक्वल टू माइनस k y I plus xj where x is positive constant x on the particle moving in the xy direction starting from the origin. The particle is taken along the positive x-axis to the point a0 and then parallel to the y-axis to the point aa. Okay, the total work done by the force on the particle is। अब इसको देखिए सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम आपको बनाना होगा, जैसे ये डायग्राम बनाया हुआ मैंने, देखिए। ओके, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसका मूवमेंट दिखाना है। आप a0 से पहले आपने इसको ओरिजिन से a0 पे ले गए, फिर a0 से a पे ले गए, तो इसके फाइनल कोऑर्डिनेट से हुए। ओके, तो फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट गिवन एज माइनस के, ये फॉर्मूला दे रखा माइनस के टाइम्स वाई आई प्लस एक्स जे। तो इसमें इस वैल्यू को यूज करके वर्क डन आप निकाल सकते हैं इंटीग्रल एफ डी आर की मदद से। ओके, क्योंकि आपको इसमें मूवमेंट हो रहा है, वेरिएबल फोर्स है, तो इस केस में आप इंटीग्रेशन से करेंगे। अगर आपका सिंपल फोर्स होता तो आप इसमें डॉट प्रोडक्ट लेके कर लेते। फिलहाल w इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, जिस तरह से करते हैं तो इसमें हो जाएगा। अब देखिए ये आपका इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट है, डी ऑफ नथिंग बट एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ओके, लिमिट्स हो जाएंगी 0 0 टू a। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो w कम्स आउट टू माइनस के इंटू एक्स वाई इन द लिमिट 0 0 टू a। तो फाइनली यू आर गेटिंग द आंसर इज माइनस के इंटू ए स्क्वायर। ओके, द आंसर इज माइनस के इंटू ए स्क्वायर, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason type question. The question is a spring of force constant k is cut into two pieces having length in the ratio of 1:2. The force constant of series combination of the two parts is 3k/2, right? Reason is given as the spring connected in series are represented by k is equal to k1 plus k2। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था दोस्तों, तो उसमें आप देखिए, उसमें हमारा जो कंसेप्ट था उसमें हमने k1 और k2 दो अलग अलग निकाले थे सीरीज और पैरेलल के लिए, तो हम देखेंगे उसी बेसिस पे। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये तो चीज़ गलत है, क्योंकि हमने सीरीज में बताया था आपको, सीरीज में 1/k के टर्म्स में चलता है, तो पहले तो गलत हो गया। एसर्शन को और देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के सॉल्यूशन आपको करता हूँ। देखिए k इज इक्वल टू f/l होता है, मीन्स k इज प्रोपोर्शनल टू 1/l, और यू कैन से डी k2/k1 इज इक्वल टू L1/L2 दैट इज 1/2। तो k1 इज इक्वल टू 2k एंड k2 इज इक्वल टू k। और सीरीज में क्या होता है, ये जैसे मैंने आपको सॉल्व करे थे क्वेश्चन, तो मीन्स 1/k डैश इज 1/k1 प्लस 1/k2। ओके, मीन्स 1/2k प्लस 1/k मीन्स 3/2k। तो k डैश यहाँ पर 2k/3 आएगा। तो इस केस में हमारे को क्या बताया उन्होंने, k प्लस 2k और ये 3k/2। इसका मतलब जो है यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर एसर्शन और रीजन आपके दोनों इनकरेक्ट हैं। देख सकते हैं आप, एसर्शन और रीजन आपके दोनों इनकरेक्ट हैं। तो इस केस में आपके ए और आर दोनों इनकरेक्ट हैं, मीन्स दिस वन बोथ एसर्शन रीजन इनकरेक्ट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर शोज अ मास m ऑन अ फ्रिक्शनलेस सर्फेस। इट इज कनेक्टेड टू रिजिड वॉल बाय द मीन ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ इट्स कांस्टेंट k। Initially, the spring is at its natural position. If a force of constant magnitude starts acting on the block towards right, then the speed of the block when the deformation in the spring is x will be। अब देखिए यहाँ पे फोर्स पूछा है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक स्प्रिंग जो कनेक्ट रखा है वॉल के यहाँ पर रिजिड सरफेस से, और यहाँ पर ये आपको मॉस के कनेक्ट का एक फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको डिफॉर्मेशन वाले केस में आपको फोर्स बताना है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से करेंगे इसको क्वेश्चन को, लेट अस सी। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे उस केस में, ठीक है। तो W हम यहाँ पे कैलकुलेट किया, डेल्टा के पोटेंशियल एनर्जी में सॉरी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा, ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया। ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ब्लॉक रखा है इस पर 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि इसका वेट भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। तो इस तरीके से ये 4 फोर्सेज हो गए। तो WF प्लस WSP, ओके, स्प्रिंग का और उसका फोर्स जो होगा वो होगा आपका 1/2 mv²। ओके, तो ये फोर्स क्या होगा, मूवमेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे रहा है वो क्या होगा, F × x माइनस ये स्प्रिंग का जो होगा उस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट के केस में 1/2 × kx² हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसमें x दिया हुआ है। तो दैट बिकम्स 1/2 mv²। ओके, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गए। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी वैल्यू हो जाएगी 2F × x माइनस kx² होने। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू दिस थिंग। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा आपका m 2F × x माइनस x²। ये आंसर करेक्ट है आपका। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पर्सन ऑफ वेट 70 kg वांट्स टू लूज 7 kg बाय गोइंग अप एंड डाउन 12 मीटर हाई स्टेयर्स। एज्यूम ही बर्न्स ट्वाइस एज मच फैट बाय गोइंग अप देन गोइंग डाउन। ओके, तो एक कोई बंदा है वो सीढ़ियों के ऊपर नीचे उतर रहा है अपने वेट लूज करने के लिए। तो उस केस में ये क्वेश्चन की बात की जा रही है। इफ 1 kg ऑफ द फैट इज बर्न्ड ऑन एक्सपेंडिंग 9000 किलो कैलोरी, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही गो अप एंड डाउन टू रिड्यूस हिज 7 kg वेट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड देनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें अप डाउन के केस में आप दोनों टोटल कैलोरी काउंट निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए एम की वैल्यू 70 kg दे रखी है, जी दे रखा है, और एच वैल्यू दे रखी है 12 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ किलो कैलोरी का बर्न कितनी होंगी, mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी है, और ये आप इसका mgh/2 मतलब एक बार वंस मतलब गोइंग अप एंड डाउन वंस, तो ये हो जाएगा mgh प्लस mgh/2। ओके, तो दिस इज 3/2 mgh। तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए m g और h की, एज पर दिस रिक्वायरमेंट यू आर गेटिंग 3 किलो कैलोरी। मतलब एक बार ऊपर नीचे जाने में आपकी 3 किलो कैलोरी बर्न हो जाएगी। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ किलो कैलोरी टू बी बर्न टू डू 7 kg वेट। तो 7 kg के लिए कितना हो जाएगा, 7 × 9000। ओके, दैट इज 6300 किलो कैलोरी। क्योंकि 9000 का यहाँ पर देखिए यहाँ फिगर दे रखा है, 9000 किलो कैलोरी दिया है। मतलब
1 kg ऑफ फैट इज बर्न ऑन एक्सपेंडिंग 9000 किलो कैलोरी, तो आपको 7 kg के लिए 6300 किलो कैलोरी बर्न करनी होंगी। तो नंबर ऑफ टाइम्स आप कैसे निकालेंगे, ऊपर नीचे चक्कर लगाने में उसको 63,000 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि एक ऊपर नीचे के चक्कर में 3 कैलोरी बर्न हो रही है, तो इसलिए आपके इतने कैलोरी बर्न करने के लिए आपको 21,000 टाइम्स जो है ऊपर नीचे चक्कर लगाने पड़े। तो दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21,000, ये वाला, यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। Now next question is, if body of mass 1 kg begins to move under the action of a time dependent force, that is F is equal to 2t I cap plus 3t square j Newton, where I and j cap are unit vectors along x and y axis, what power will be developed by the force at the time t? Okay, out of these 4 options हमें एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें देखिए f की वैल्यू दे रखी है, इसमें इसको m इंटू ए, एक मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज m इंटू डी डी टी ऑफ v विच इज इक्वल टू दिस थिंग। तो यहाँ से आपको कहने मतलब m इज इक्वल टू 1 kg रख के आप इसमें v की वैल्यू निकालिए इंटीग्रेट करके। ओके, तो यहाँ से अगर वेलोसिटी आ जाएगी तो पावर मैंने आपको बताया था, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पर फोर्स इंटू वेलोसिटी इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो फाइनल आंसर वुड बी पावर दैट इज 2t इंटू टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर इंटू टी क्यू, मीन्स 2t क्यू प्लस 3t टू द पावर 5, दिस इज द फाइनल पावर। ओके, तो 2t क्यू प्लस 3t टू द पावर 5, 2t क्यू प्लस 3t, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 raised to power minus 4 joule by the end of the second revolution after the beginning of the motion? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहाँ में जो मतलब वो निकालना है टोटल मैग्नीट्यूड इस एक्सेलेरेशन का। तो इसको कैसे करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से, मैंने आपको बताया था, तो उसमें डब्ल्यू टेंजेंशियल हमने निकाली दैट इज डेल्टा की। ओके, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो अब इनिशियल तो जीरो है काइनेटिक एनर्जी उसकी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी तो m इंटू ए विच इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन इंटू एस मीन्स डिस्टेंस दैट इज 8 इंटू 10⁻⁴। देखिए यहाँ पर दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁴ दे रखा है। ओके, तो इतनी जूल फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ रख दिया के एफ की जगह यहाँ रख दिया। ओके, और एस की वैल्यू कितनी है, एक एस का मतलब एक चक्कर है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ द सेकंड रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में कितना होता है, 2 पाई आर होता है, अगर रेडियस आर मान लेते हैं तो 2 पाई आर इंटू 2, तो सेकंड रेवोल्यूशन के एंड में इतने हो जाएंगे, 2 चक्कर पूरा करते करते इतनी यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा। तो 80 क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूले से यू कैन कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू ऑफ 80 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस एंड ऑल दीज वैल्यूज विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। यू आर गेटिंग 80 इक्वल टू दिस 2 इंटू 10⁻² अपॉन पाई इंटू 6.4 बिकॉज रेडियस इन दिस क्वेश्चन इज गिवन है। देखिए यहाँ पर दे रखी है रेडियस दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर, उसको मीटर बना लीजिए तो आपके पास आंसर आएगा लगभग 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर इज 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द सॉल्यूशन। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज a block of mass 10 kilogram moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second is subjected to a retarding force F is equal to 0.1 into 0.1x joule per meter during its travel from x is equal to 20 meter to 30 मीटर। इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी वुड बी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा दीजिए और उसमें क्या होगा, W जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो उसके इसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे W प्लस क्या है, इसी फॉर्मूले को यूज करके तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x1 to x2, मतलब x1 to x2 मतलब 20 मीटर से 30 मीटर, ये आपकी लिमिट दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए x1 to x2 fdx प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये हाफ mv स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ओके, और ये W आपको बर्टन हो गया, तो इसमें वैल्यूज रख दी है 20 to 30 लिमिट्स में आप ये 0.1 dx विद माइनस साइन और इंटू डी एक्स प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, सारी वैल्यूज रहूँगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, जब इसको इंटीग्रेट करूँगा और एक एक स्टेप वाइज करूँगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि एफ की वैल्यू आएगी यहाँ पर आपकी 475 जूल्स। तो ये आपका आंसर हो गया 475 जूल, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, next question, a particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power k watts. If the particle starts from rest, the force on the particle at time t is, इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर आपको कंसेप्ट वही लेना पड़ेगा, जैसा मैं आपको बताता रहा हूँ क्योंकि मशीन डिलीवर कर रही कांस्टेंट पावर यहाँ पर। ओके, तो उस केस में एफ और बी कांस्टेंट होगा, मतलब एफ इंटू वी कांस्टेंट होगा। तो हमें ये कंसेप्ट यूज करना है दोस्तों, यहाँ पर एफ इंटू बी का कांस्टेंट कंसेप्ट का हमें यूज करना है। तो देखिए इसको देख लेते हैं हाउ टू सॉल्व दिस। तो देखिए एफ इंटू बी का कांस्टेंट यूज करूँगा तो एम इंटू डी वी डी टी इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट, इंटीग्रेट कीजिए दोनों साइड पे। इफ यू आर इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एज अंडर रूट 2 k/m इंटू टी। नाउ फोर्स ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। ओके, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए और एम डी वी अपॉन डी टी मीन्स एम इंटू डी डी टी ऑफ ये वैल्यू वी की वैल्यू यहाँ से डिफरेंशिएट कर दी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट m k/2 into t की पावर माइनस 1/2। तो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A force F is equal to 10 plus 0.5x x on a particle in the x direction. What would be the work done by this force during a displacement from x is equal to 0 to 2 meter? F is in Newton and x in मीटर, वही आपकी ऐसा यूनिट्स में दे रखे हैं। तो हमें इसमें क्वेश्चन करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, आप फोर्स की हमने जो फोर्स दिया हुआ है उस फोर्स को देखते हुए हम कैसे लिखेंगे। देखिए हमने फोर्स को कैलकुलेट कर, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 10 प्लस 0.5x और वर्क डन क्या होता होगा DW इक्वल टू FD, मतलब अगर आपका सिंपल स्मॉल वर्क है उस केस में DW इक्वल टू FDX हो जाए। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए और x किलोमीटर दीजिए। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था तो आपके पास फाइनल जो वर्क डन का आंसर आएगा 21 जूल्स आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर इसको ये 21 जूल को हम करेक्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 11.7 kg इज टू बी पुश्ड और डिस्टेंस ऑफ s इज इक्वल टू 4.65 मीटर along an incline and raised to a distance of h is equal to 2.86 meter. Assuming frictionless surface, calculate the work done in applying a force parallel to the incline to push the block up to a constant speed. टेक जी इक्वल टू दिस थिंग। तो हमें इसमें ये सारी वैल्यूज लेके हुए काम करना है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें पहले तो साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे। ओके, साइन थीटा देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। साइन थीटा ये वैल्यू दे रखी है सारी, साइन थीटा आ जाएगा आपका एच अपॉन मीन्स दिस हाइट अपॉन दिस एस मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू आर गेटिंग साइन थीटा इक्वल टू 0.615।
ओके ना कंपोनेंट ऑफ एम जी एलोंग द इंक्लाइन इज एम जी साइन थीटा, ये वाला एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ओके इसके इसके एलोंग जो कंपोनेंट होगा। ओके तो वर्क डन क्या होगा इस फोर्स के द्वारा, एम जी इंटू साइन थीटा इंटू एस। बस इसमें वैल्यूज रख दीजिए, एम इज 11.7 जी, दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज एस। ओके एज पर द क्वेश्चन एंड यू आर गेटिंग द फाइनल वैल्यू 328 जूल। तो फाइनल आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू 328 जूल। तो ये आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एलिवेटर weighing 500 kg to be lifted up at a constant velocity of 0.20 मीटर पर सेकंड, what would be the minimum horse power of the motor to be used। अब देखिए इसको करने के लिए आपने मास, एलिवेटर का मास 500 kg है, वेलोसिटी आपकी 0.2 मीटर पर सेकंड, तो वेट कितना होगा एलिवेटर का, m इंटू जी से 500 इंटू 9.9, दिस इज द फोर्स। ओके तो पावर हो जाती है, पावर इज सिंपली p इक्वल टू f इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स इज 500 इंटू 9.8 इंटू वी की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है 0.2 मीटर पर सेकंड, तो आपके पास इतना आ गया 980 वॉट्स। अब एचपी रेटिंग निकालने के लिए वॉट को आप एचपी बना ली तो 746 वाला कन्वर्जन फैक्टर के हिसाब से आपको 1.31 हॉर्स पावर ही आ जाएगा। तो आंसर इज 1.31 हॉर्स पावर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, देन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर। अब इसमें पता करना है क्या क्या है इन चार ऑप्शन में से, तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट बॉडी का देखिए ये हो जाएगा, हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व भी किया था, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू के, तो P1 स्क्वायर इज सिंपली 2m1 के फॉर फर्स्ट बॉडी। सिमिलरली फॉर सेकंड बॉडी हो जाएगा P2 स्क्वायर इक्वल टू 2m2 इंटू के। नाउ अगर एक तो आप आपस में दोनों को डिवाइड करें तो फाइनल अपने पास आंसर आएगा P1 अपॉन P2 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ द मासेस, देख सकते हैं आप यहाँ। तो इसके मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, हमने पूछा है रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर रूट ऑफ द मासेस, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg मूविंग विद सेम वेलोसिटीज आर स्टॉप्ड बाय द सेम फोर्स, ठीक है, सेम वेलोसिटी से चल रही है, सेम फोर्स से रुकी जा रही है। देन द रेशियो ऑफ देयर स्टॉपिंग डिस्टेंसेज, अब इसमें इसको कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों मासेस दे रखे हैं 1 kg 2 kg और V1 V2 बराबर है क्योंकि सेम वेलोसिटी है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी आप अलग अलग मान लीजिए क्योंकि दोनों के मासेस अलग हैं, तो दोनों की आपको निकाल लीजिए। फर्स्ट बॉडी के लिए K1 क्या होगा F इंटू S1 एंड K2 वुड बी F इंटू S2। ओके जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा S1 अपॉन S2 इक्वल टू से M1 अपॉन M2 इंटू, और यू कैन से S1 अपॉन S2 इक्वल टू 1/2, तो ये आपका 1/2 के रेशो में आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1/2। ए ऑप्शन इज करेक्ट। Okay. Next question is, a body of mass m is equal to 3.9 kg slides on a horizontal frictionless surface table with a speed of v is equal to 1.2 meter per second. It is brought to rest in compressing a spring in its path. How much does spring is compressed if its force constant k is 135 Newton per meter? Now let us see how to solve this problem. Again friends, we have to apply law of conservation of energy. देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर law of conservation of energy यूज करके आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर जो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इससे एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के एम बी स्क्वायर अपॉन के। यहाँ पर देखिए आपकी एम वी और के की वैल्यूज ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखी है, तो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0.204, तो इन दिस द आंसर इज 0.204। तो देखिए टफ क्वेश्चन जो है थोड़े से आपको इस तरह के करने होंगे सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट एनफ टू डील विद द नीट प्रॉब्लम्स। तो दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन द दिस मेडिकल एग्जामिनेशंस, जो आपके एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड फोर्स constant k is stretched to obtain extension L. It is further stretched to obtain extension L1. ओके उसको दो बार खींचा तो दो बार एक्सटेंड हुई है। द वर्क डन इन सेकंड स्ट्रेचिंग इज, अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करता है, फर्स्ट एक्सटेंशन में हम निकाल सकते हैं वर्क डन मींस हाफ के एल स्क्वायर, जैसे आप जानते हैं सेकंड एक्सटेंशन है उसमें और लेंथ में वृद्धि हुई है, मतलब उसकी लेंथ और एक्सटेंड हुई है, तो हो जाएगी हाफ के इंटू L1 प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके तो वर्क डन क्या होगा सेकंड स्ट्रेचिंग में, उसको सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ के L1 2L प्लस L1, हाफ के L1 2L प्लस L1। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। Next question is, a body is initially at rest. It undergoes one-dimensional motion with constant acceleration. The power delivered to it at time t is proportional to. अब देखिए इसको करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, p इक्वल टू w बाई टी का। ओके तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव में आपने क्या किया f इंटू डी एक्स डी कर दिया, तो f इंटू बी हो गया। अब p इक्वल टू f इंटू एम बी की जगह u प्लस एटी होता है क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो होता है v इक्वल टू u प्लस एटी होता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v इक्वल टू एटी हो गया, तो f की जगह में लिख दिया, मींस फाइनली यू कैन से p इक्वल टू m इंटू ए स्क्वायर इंटू टी। ओके तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से p इज प्रोपोर्शनल टू t बिकॉज m इंटू ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है तो इस केस में हमारा जो वो वैल्यू हो गई p इज प्रोपोर्शनल टू t हो गई। ओके तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पर्सन्स A and B टेक 2 seconds and 4 seconds रेस्पेक्टिवली टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट टू द सेम हाइट h, देन द रेशियो ऑफ देयर पावर्स इज। अब देखिए इसको करने के लिए फिर से उनके टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, T1 2 सेकंड है, T2 4 सेकंड, और H1 H2 दोनों की बराबर हाइट सेम है, तो आप ए की काइनेटिक एनर्जी सॉरी ए की पोटेंशियल एनर्जी और बी की पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से आप पावर दोनों की निकाल लीजिए। ओके तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी mgh1 और इसकी होगी mgh2। अब इसमें T1 और T2 से डिवाइड करेंगे तो आपके दोनों की पावर आ जाएंगे, मींस PA is to PB, दोनों का रेशियो क्या आएगा 2:1। यू कैन इजीली सी फ्रॉम दिस। ओके तो ये आपका आंसर हो गया PA PB 2:1 का, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके दिस इज द करेक्ट आंसर। If a machine, next question is, if a machine gun fires n bullets per second each with kinetic energy, okay, then power of the machine gun, अब इसमें क्या है अब इसमें पूछा है तो इसमें पावर मशीन गन की पावर कैसे निकाली जाएगी। देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पावर ऑफ द मशीन क्या होगी W/T, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है। अब n बुलेट्स, यहाँ पर कितनी बुलेट्स हैं n बुलेट्स पर सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा n इंटू 1/2 mb स्क्वायर, ये सिंगल बुलेट की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, तो n इंटू 1/2 mb स्क्वायर इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके डिवाइडेड बाई टाइम, तो आपके पास फाइनल आंसर है n इंटू हाफ mb स्क्वायर अपॉन टी। तो ये क्या है हाफ mb स्क्वायर अपॉन टी,
बेसिकली यू कैन से दिस इज के इज नथिंग बट 1.2 MB स्क्वायर इन फॉर 1 सेकंड। तो फाइनली आप क्या कह सकते हैं, पावर द मशीन गन इज नथिंग बट इज इक्वल टू n इंटू के। तो आपका दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा n इंटू के, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। A uniform force of 3I plus j Newton acts on a particle of mass 2 kg. Hence, the particle is displaced from position 2I plus k meter to position 4I plus 3j minus k meter. The work done by the force on the particle is. अब इसमें हमें पता करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे वर्क डन निकालना है तो W बराबर F इंटू टी होता है। तो उस एक कंसेप्ट से आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपको फोर्स दे रखा है और दो पोजीशन दे रखी है R1 और R2, तो इससे आप पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। तो पोजीशन वेक्टर S इज नथिंग बट R2 माइनस R1, ये आ गया आपका meters में। Now once this S is calculated, you can find out the work which is dot product of force and displacement, means force that is 3I plus j dot 2I plus 3j minus 2k। अब ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 0, है ना। ये तो ये आएगा टोटल 9 जूल। तो ये आपका दोस्तों ये आंसर आ गया आपका 9 जूल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका आज का टोटल वीडियो। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री सीताराम जी।